देखिए, सवाल आपका जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉड, फेथ, फ्री विल, इनको कांट क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फ्री विल तक बात समझ में आती है, बिकॉज कांट assumes that, not just assumes, he actually postulates that we are free, and then he takes into account the fact that we are living in a society, and that for that society laws are important, right? And because laws are important, the implication is that there is rewards and there are punishments. If you don't postulate free will, you cannot guarantee. If everything is determined, then you cannot guarantee the operation of law. You cannot ensure the operation of law. There cannot be any justifiable punishments and rewards. Right? This is the Right. problem. So, therefore, now having said that, this whole process of moving from maxim to a categorical imperative, which, if you recall, is unconditional imperative, which is applicable to everybody everywhere, all rational beings, not just human. Anything which is rational, categorical imperative applies to that being. हम्म, एक बात, मैक्सिम से कैटेगोरिकल इंपेरेटिव तक पहुंचने के खातिर जो प्रोसेस है, उसमें कहीं पर भी गॉड का या रिलीजन का कोई अमल दखल नजर नहीं आता। उसमें टेस्ट ओके। रखे हुए हैं कांट ने कि आप कोई आपका मैक्सिम जो है, इफ इट implies यूजिंग ह्यूमंस एज मीन्स टू योर एंड्स, then it fails that test. If it हम्म, implies you, when he asks you whether you will it to a law yourself, would you like everybody to do this and then raise it to the level of law? If the answer is no, then you cannot raise it to categorical imperative. So if your maxim fails these tests, which are very reasonable tests, and they don't involve the operation of religion and God, then you raise them to the level of categorical imperative. And if you keep doing that, you can construct an entire edifice of morality without reference to religion. इसलिए आप देखें कि एजुकेशन का जो सीक्वेंस है, उसमें भी वो कहते हैं कि जी मोरालिटी कम्स फर्स्ट। पहले यू टीच देम टू बी रीजनेबली मॉरल, एंड देन टीच रिलीजन। जी। थियोलॉजी जो है वो बाद में आएगी। अच्छा, अब वो फिर हम्म, सवाल ये है कि भाई, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और इफ रीजन इज दैट इम्पोर्टेंट, तो फिर आपने गॉड और फेथ को नूमिनल रियल में भेजने का मकसद क्या है। तो यहां पर जो है सवाल, उसका जवाब उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। When you act according to the virtues or your morals, um, the result should be good, right? बट सच हम्म, हमेशा बोलने का सिला आपको नहीं मिलता, बल्कि नुकसान हो जाता है। जी। और भी ऐसे चीजें हैं जिसमें इफ यू go by the categorical imperative, if you do everything right and as a moral, an honest moral person should, that you will be punished in this world. And so then what motivation is there to actually follow the categorical imperatives? कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आपने अच्छे काम किए हैं, उनका सिला आपको मिलेगा ही मिलेगा इन द हेयर आफ्टर। हम्म, तो फिर आप क्यों अच्छे काम करें जब आप पता है कि यहाँ पे अच्छे काम करने का तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर मैं दूध में पानी नहीं डालूंगा तो मुझे पैसे ठीक नहीं मिलेंगे। अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा मिल जाएगी। हो सकता है कि मैं फाइल लग जाऊं। तो मैं जी। क्यों ये करूं, मतलब अपनी जान क्यों ना बचाऊं मैं। वुड शुड दैट अपनी जान को बचाना, शुड दैट बी अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव? बट इट इज नॉट इन सर्टेन सिचुएशंस। हम्म, And the only way that you can protect, therefore, the moral action is that if you believe in a God. And we don't have to prove it. You don't have to prove God, जैसे वो कहते हैं, वो नोमिनल रियल में है। लेकिन आप ये आपका मॉरल एक्शन जो है, जो कि हमेशा आपको मॉरल एक्शन ही करना है,
सो और अगर आप नुकसान उठाते हैं थोड़ा सा बाय मूविंग ऑन द राइट पाथ, तो फिर इस नजरिए से उठाते हैं कि एक्चुअली आपको फायदा हो रहा है। तो वो फायदा आपको कौन पहुंचा रहा है भाई? दुनिया में तो कोई नहीं पहुंचा रहा। तो इसलिए जो गॉड को पोस्टुलेट करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है एज अ गारंटर ऑफ मोरालिटी। मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली जो है जब आप कोई अच्छा काम करें तो उसके नतीजे में आप that it should increase your worth and your happiness na? This is not in monetization monetary terms or those terms। अब वो होता नहीं है। मतलब worthiness or happiness which should result from moral deeds is not always possible। It doesn't happen in the real world, but it should। Okay. The only way that you guarantee it by saying that it will happen in the hereafter। Okay, इसके लिए मतलब मैं क्यों कोई भी अच्छा काम करूं यार? जहां पर भी मैं बच के निकल सकता हूं। डॉजिंग इसी को कहते हैं। और जो लोग इंसानों को इस्तेमाल करते हैं एज अ मीन्स टू एन एंड, राइट, एंड दैट दे do all kinds of things which are immoral, right? वो उनका जो ये बात अगर हम मुसलमान के तौर पर देखें तो वो जाहिर है कि उनका बिलीफ इन गॉड जो है वो हम ये समझ लेते हैं कि यार उनको किसी ने उनके कान में ये बात डाल दी है कि आप ये कर गुजरे सब कुछ एंड देयर विल बी नो पनिशमेंट। तो वो फिर कहते हैं इंसान कि चलो थोड़े से मैं फिर गुनाह कर ही लेता हूँ यहाँ पे, खैर है। क्योंकि मैं आखिर तो बच ही जाऊंगा। सो मतलब ये कि वो उस टेंडेंसी को कांट ब्लॉक करते हैं। और वो ब्लॉक तभी कर सकते हैं कि आप अगर इस दुनिया में बच भी गए या इस दुनिया में आपको सिला नहीं मिला तो भी आपको सजा भी मिलेगी और आपको जजा भी मिलेगी। दैट यू कैन ओनली गारंटी बाय बिलीविंग इन गॉड। नो अदर वे दैट यू कैन। मतलब आप कातिल जो हैं, बहुत से कातिल जो हैं इस दुनिया से बच के निकल गए हैं। नहीं, कातिल हुसैन को भी सजा नहीं मिली यहाँ पर शायद, या मिली, आई डोंट नो। बट आई मीन ये जो जुल्म सारा होता है होता चला जाता है उसको उसके बाद जालिम जो है वो हमेशा यहाँ पर सजा याफ्ता तो नहीं है ना। इस वक्त आप देखिए गजा में जो कुछ हो रहा है, तो वो उसके बाद नाचते गाते फिर रहे हैं। तो मरेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ तो नहीं रहेंगे हमेशा। ही ब्रिंग्स गॉड इन एज अ गारंटर ऑफ मोरालिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस दे। अब ये किस हद तक जो है रिलीजन से ये फिर अलग कमेंट्री है कि वो मुताबिकत रखते हैं या नहीं। बट देखिए हमारी यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना। दे मे appear to be reasonable acts category but they never think about the why of those at times। और अच्छा, अब वो बाज लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नो यू गॉट टू लुक एट द रीजन फॉर अ लॉट ऑफ कमांडमेंट्स एंड दे लुक फॉर दोज एज वेल एंड सो ऑन। अब वो इस तरह की जो मुख्तलिफ टेंडेंसीज जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब ये है कि वो कांट जो है वो रीजन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसने रीजन को प्रोटेक्ट किया, साइंस को प्रोटेक्ट किया और साइंस को एक वैल्यू दे दी। और हम शायद वो नहीं कर सके। तो एक वेस्टर्न एनलाइटनमेंट जो है उसमें कांट का एक बहुत बड़ा रोल है। और साथ साथ उसने रिलीजन को भी प्रोटेक्ट किया कि अकल को अगर बिल्कुल खाली छोड़ दिया तो वो फिर रिलीजन पे चढ़ दौड़ेगी। क्योंकि अकल, जैसे वो जावेद साहब भी अपने एक लेक्चर में मैं रिसेंटली देख रहा था, वो कहते हैं कि अकल एक शिकारी है। वो शिकार, उसको सिर्फ शिकार करना आता है। तो रिलीजन का शिकार कर लेते हैं। तो उसने देखे कितनी खूबसूरती से उसने कहा आगे जा ही नहीं सकते तुम, रास्ता बंद। और वो अकल उससे दीवार के साथ सर टकराती चली जा रही है। तो द वेलिंग वॉल, तो ये एक वेलिंग वॉल है कांट ने जो खड़ी कर दी है।